फिर ऐड हो जाए. So good morning friends. Today let's start. क्यों मीट में नहीं आते, उसका एक ही रीजन हो सकता है कि people either they are not finding any great value or they are in such a situation where they don't know what to do. And कभी भी ऐसा होता है कि people don't want to get embarrassed. That is the issue. Now we are seeing that the market is now doing the ups and downs. Gap down खुलता है, gap up खुलता है, and the situation is now exactly like how it was before. One side market चल गया एक साल में, and those who are into the game they felt कि भाई market तो so simple है, and we are able to make money, not a problem at all. But now the situation have changed, and the ups and downs means gap up gap down opening बहुत ज्यादा हो रहा है. And see generally what happens is के टेक्निकल्स के हिसाब से वो भाग गया, लेकिन फंडामेंटल्स के it was nowhere near the fundamentals. तो लॉ ऑफ बोलते हैं ना कि लॉ कैचेज अप. कोई भी रबर बैंड को खींच के लेके जाते हो तो वो वापस टुवर्ड्स द मीन आता ही आता है, एंड वही चक्कर चालू है as far as the fundamentals catching up is concerned. And the price are going up and down rapidly. So just to give you a few example for that also, let me share the screen. क्योंकि the point is ये सब मत बताओ, करना क्या है वो बताओ. तो ठीक है, let's do करना क्या है, क्या करना है, and how the things are going to work. Now here we are seeing Nifty का thing, okay, and Nifty में as we are seeing since the last, okay, just check this out. Last October when Nifty had picked, right, 18,600 के आजू बाजू यहां पे पहुंच गया था निफ्टी. उसके बाद में it came down, then it went up, right, it came down again to go up, and now it is at a situation where one doesn't know what is going to happen next. And this is the place where most of the money are getting stuck or people don't know what is going. See यहाँ पे तो बहुत easy था, okay, एक सिंपल सादा लाइन बना के रखा, ओके, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, right? And then when the breakout has taken place, people would love to buy this. So technically आप बोल सकते हैं कि ये stage 1 हो गया, okay, and then when the stage 2 started, a beautiful wonderful up move coming in, जहां पे it was like 15,000 से 18,000 3,000 पॉइंट वन साइड मूवमेंट के हिसाब से चल गया. नाउ एवरीबडी फेल्ट गुड अबाउट इट के भाई मार्केट तो ऐसा ही है, एक ही साइड भाग रहा है, and we are going to make a lot of money. Yes, the money was made, definitely the money was made, and it is good thing that people have made money because जब ये फॉल आया था, ओके, जब ये फॉल आया था, लेट मी सेव दिस फॉर अवर रेफरेंस. जब ये फॉल आया था, we will check that out कि वो फॉल भी कैसे आया था and how it went up. Now what has happened, let us understand where the market is, on how do you put it into perspective. So if I am looking at it in this particular format, okay, where the price are right now dancing, where the price are actually dancing, नीचे गया, ऊपर आया, ओके, और यहां पे टूटा कहां पे प्राइस, तो this was the place where the price has broken. Yes or no? Do you agree with me that the price broke over here at this junction?
So now is this not an M formation which we are looking at, right? So can I call this as an M formation over here on the top? Now if this is an M formation का clear understanding क्या है in terms of how it will go and till where it will go. अगर टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिस इज द थिंग कि हमको टारगेट क्या मिल रहा है, राइट? तो टारगेट हमारा ये वाला टारगेट यहां पे अचीव होता है, राइट? नाउ चेक दिस आउट, यहां पे फिर से ऊपर गया प्राइस, okay, and then when it broke once again, a sharp fall coming in, very strong sharp fall coming in. But if you check the trend analysis के point of view से यहां पे नया हायर लो बन गया था और यहां पे नया लोअर लो बना था. तो कैन आई इजीली राइट ओवर हियर कि ये अगर हाई था, ओके, यहां पे हायर लो बना, यहां पे भी हायर लो बना, ओके, और ये अगर मैं इसको लो को पकड़ता हूं तो यहां पे लोअर लो बन गया और यहां पे फिर से लोअर लो बना, राइट? सो टेक्निकली द ट्रेंड यहां पे ये तरीके से नीचे जा रहा था, वेयर द प्राइस केप्ट ऑन गोइंग डाउन, और फिर यहां पे अगेन वेयर द प्राइस हैड एक्चुअली गॉन डाउन. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, और ये खाली समझ लो एक बार के लिए एंड देन आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, सी दिस, एक बार नहीं गया ऊपर, दूसरी बार नहीं गया ऊपर, तीसरी बार जब भी जाता है तभी वो कंफर्मेशन हो. दैट मींस फर्स्ट पुल बैक जब भी होता है, प्लीज रिमेंबर दिस, व्हेन देयर इज अ फर्स्ट पुल बैक, ओके, अवॉइड बाइंग. एक गोल्डन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख के रखिए एंड यू विल गेट अ ब्यूटीफुल आइडिया कि हम लोग फर्स्ट पुल बैक को नहीं बाय करते, वी विल वेट, ओके, एंड देन द फॉल कमिंग इन, एंड द फॉल इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, सो अगेन आई एम गोइंग टू सेव दिस फॉर अवर रेफरेंस के हायर लोज एंड लोअर लोज कैसे बन रहा है. ओके, लेट मी क्लियर द ड्रॉइंग राइट नाउ ओवर हियर. ओके, सो नाउ when the price are going up once again, okay, यहां पे आप देखिए कहां पे भी you did not had any selling coming in except over here, right on the top, right on the top, वहां पे selling दिखाई दिया and the drop was really fast, and this is what is going to happen and people are going to get caught. ओके, और ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, नहीं, इट विल कम बैक अगेन, इट विल कम बैक अगेन. ओके, एंड बिलीव मी, एफएनओ में जो लोग स्टॉप लॉस के बिगर काम करते हैं फंस जाते हैं, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक, एंड इवन इफ इट कम्स बैक हाफ वे डाउन द लाइन, ओके, और फिर मार पड़ती है, बोला है यार ठीक है एक बार हो गया लेकिन अभी भी अप मार्केट है. पीपल आर सेइंग इट इज अप मार्केट. यस, डेफिनेटली इफ यू सी द हायर टाइम फ्रेम, ओके, वो आप दिखेगा कि ये तो अप मार्केट अभी भी चालू है. टिल वेयर इट इज गोइंग टू बी अप मार्केट, बट द पॉइंट इज आपका जो स्टॉक है वो अप मार्केट में है क्या? आपका स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क विच वी बेसिकली always need to ask ourselves, yes or no. Now look at this in terms of why the trend they are saying it is an uptrend. So if I can draw a simple line, this still remains as an uptrend, where this technically they are calling it as a correction. Okay, so in this case can I just join this out, right? So the point is अभी ये 17,300 के नीचे जाएगा. प्लीज राइट डाउन इफ यू वांट, प्लीज राइट डाउन. 17,300 के नीचे जाएगा तो इजीली ये 17,000 पहुंचने वाला है कि नहीं पहुंचने वाला है?
यस, लेकिन ये गैप डाउन ही इतना खुलेगा, 150 पॉइंट का गैप डाउन, 100 पॉइंट का गैप डाउन अभी बहुत कॉमन हो गया है, 100 पॉइंट और 150 पॉइंट का गैप डाउन. नाउ दिस इज द प्लेस इट इज गोइंग टू वेट फॉर सम टाइम. और कल ये हो सकता है क्योंकि फेड का कुछ गड़बड़ हुआ है, यूएस मार्केट इज डाउन. ओके, और हम लोग ने ऑलरेडी परसों को 200 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुके हैं. ओके, सो दिस यहां से द नेक्स्ट लेवल विच इज देयर और सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे 16,800 का है, और फिर सीधा सीधा 16,500 का. So these are the three levels which are there for us to now look at. Let me now make you understand कि अभी क्या होगा और कैसे वो ऑपरेट करेगा, क्या करने वाला. सो टुमारो मंडे गैप डाउन खुल गया. ओके, यहां पे अटकेगा. पीपल विल से ओ माय गॉड, इट इज टेकन अ सपोर्ट ऑफ अ ट्रेंड लाइन. सो अगेन देयर विल बी अ बाइंग कमिंग इन, maybe. Okay, but if this 17,000 is broken, then the drop will be again coming in. Again it will try to go beyond 17,000. Okay, and then coming down over here right up till 16,500. That means 1000 पॉइंट अगर निफ्टी तोड़ देता है तो कौन सी आइटम और कौन से स्टॉक वो उसके साथ में लेके जाना है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. नाउ यू प्लीज नीड टू अंडरस्टैंड ओके कि ये कौन से स्टॉक्स है जो इसको नीचे लेके जा सकते हैं, कौन सा सेक्टर है जो अभी प्रेशर में है. एंड द वन सेक्टर विच इज अंडर प्रेशर राइट नाउ, व्हाट आई लुक एट इट इज द आईटी सेक्टर. ओके, जिसने पूरा का पूरा मार्केट अभी तक ऊपर लेके गया था. एंड नाउ इन द लास्ट मे बी जस्ट 2 वीक्स, ओके, नाउ आईटी सेक्टर को मारना शुरू किया है. सी बैंकिंग सेक्टर एक लेवल पे वो प्रेशर में अभी भी था ही. ओके, ठीक है, पीएसयू बैंक पहले प्राइवेट बैंक्स चली, फिर लास्ट जो मूवमेंट हुआ, जो अभी का जो मूवमेंट हुआ है उसमें पीएसयू बैंक्स चल गई, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स है वो नहीं चली है. So we can understand that the trend is still sideways. Okay, ट्रेंड टूटेगा कभी अगर ये 17,000 के नीचे जाना शुरू करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो ट्रेंड टूटेगा. ये दिमाग में डाल के रखना पड़ेगा अपने को. ओके, लॉन्ग टर्म ट्रेंड है. यस, इट विल बी मोर स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग कमिंग इन, but the selling will be fast and huge also. Why? क्योंकि ये चीज समझना है कि कौन से स्टॉक को हम लोग बेच सकते हैं और कौन से स्टॉक को हम लोग पकड़ के रख सकते हैं. That is a very very important thing which is going to happen. So any questions as far as Nifty is concerned? Sir? Yeah, please. सर दो क्वेरीज है सर. निफ्टी का पैटर्न को लेके अभी जो है कि आपने पहले दिखाया था कि अक्टूबर के टाइम पे वो एक छोटा सा एम बनाया. Yes. अभी भी हम बोल सकते हैं कि एम बन रहा है. देखिए, अगर एम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये वाला जो है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये एम का ही अंडरस्टैंडिंग है ना यहां तक का. नहीं, इससे पहले वाले को भी ले लेते हैं सर, जो वो अक्टूबर से लेके अभी जो फरवरी जनवरी में जो नीचे लो बनाया अक्टूबर का है. हाँ, ये और तो फिर यही हो गया. हाँ, ये राइट. सो ये वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया ना सर. यस सर, 16,500 सर. यस, 16,500 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, क्योंकि अगर हम लोग ये देखते हैं, ओके, एंड लेट मी चेंज द कलर ओवर हियर फॉर द टाइम बीइंग, कि अगर ये एम पैटर्न हम लोग देखते हैं, ये अभी तक हुआ नहीं है, सो वी आर जस्ट एंटीसिपेटिंग दिस. करेक्ट सर, अभी हुआ नहीं है. ओके, सो ये इसके नीचे का क्लोजिंग आना शुरू करेगा, राइट. अगर इसके नीचे क्लोजिंग आना शुरू करेगा
तो द ड्रॉप इज गोइंग टू बी फास्ट डेफिनेटली। यहाँ के पहला सपोर्ट लेगा, उसके बाद इसको तोड़ा तो उसके और नीचे जाएगा। ये वाला हाँ, ये वाला सपोर्ट होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा इसका। यस एंड यू आर राइट 15,800, राइट 15,800 900। करेक्ट। अगर इसको तोड़ा तो फिर ये नीचे जाएगा, बिकॉज एम का जो टारगेट है वो इसके नीचे है। हाँ अगर एम का टारगेट देखेंगे तो ये स्टेज 4 कंप्लीट होने का हिसाब हो गया ना फिर। हाँ, फिर उसके नीचे जाएगा, इसके भी तोड़ के नीचे जाएगा। यस लेकिन देखिए लेट्स लुक एट इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। लेट्स लुक एट इट कि भाई अभी क्या कर रहा है। चलो ये हम लोग अपने रेफरेंस के लिए सेव करके भी रखते हैं एज फार एज द टारगेट्स आर कंसर्न। लेकिन राइट। अभी मंडे को क्या होगा, द अभी पॉइंट इज मंडे क्या अभी जो करने वाला है। तो मंडे को अगर गैप डाउन ओपन हो गया 300-400 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, कैन आई बाय और आई हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। द पॉइंट इज अभी तक यही नहीं समझ में आता है कि ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। तो बैंड बच गई कि नहीं बच गई। और दूसरा सर, अभी निफ्टी जो है एक ट्रायंगल भी बना रहा है सर। करेक्ट। ये जो ब्लैक लाइंस हैं, जो हाँ स्लोपिंग लाइंस है, उसमें ट्रायंगल बन रहा है सर। अभी ट्रायंगल में नीचे की तरफ जाके, जो अभी आपने बताया कि वो अभी वो ब्रेक डाउन हो सकता है ट्रायंगल से डाउन की तरफ। हम्म। तो अभी देखिए जो ट्रायंगल का जो मैं बता रहा था, ओके, सो ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, अभी देखिए अभी कहां पे हम लोग, अभी यहां पे है राइट। ओके सो ट्रायंगल के लिए भी अभी इसको यहां पे तो आना पड़ेगा ना, जी, नीचे आना पड़ेगा ट्रेंड लाइन यहां पे के। आना पड़ेगा और यहां से फिर से बाउंस बैक हो सकता है। करेक्ट। ओके सो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये गैप डाउन खुलता है तो 17,000 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल फॉर अस। जी। ओके उसके बाद में 16,800 वाला है वो क्रूशियल लेवल हो जाता है। एंड उसके बाद में नीचे जो 16,600 16,400 वाला लेवल जो लास्ट टाइम का लो था। सो एवरी टाइम इट इज टाइम टू गो अप, इट इज बीइंग बैश डाउन। ये तो एटलीस्ट क्लियर हो गया। नाउ लुक एट थिंग्स कि भाई हम लोग कितना एफआईआईस को पकड़ के रख सकते हैं। इट्स अ क्वेश्चन मार्क राइट और नॉट। एंड वी हैव सीन कि जब भी एफआईआई यहां पे आने के बाद में लास्ट 2 महीना मींस ऑलमोस्ट 2 से 3 महीना हो गया, लास्ट नवंबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर नवंबर से आज ये फरवरी हो गया, ये लोग कंटिन्यूस इनका बेचना शुरू है कंटिन्यूस। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्ट अगर हम लोग बोल सकते हैं भाई जो 8,000 पे जो उन लोग आए हैं वो 8,000 से लेके अभी 17,000 आ गए, इन लोग बेचना कंटिन्यूस चालू। एंड अपना डीआईआई इज बाइंग इट, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, दैट नहीं तो कभी का नीचे आ जाता राइट। सो इट्स डेफिनेटली गुड दैट द बाइंग इज देयर डेफिनेटली। Tavish, I can't see the chart. You will have to refresh. आप तरुण जी आपको चार्ट दिख रहा है राइट? Yes sir, I can see the chart. Okay. So Tavish, you will have to log in again. Chart is being seen by everyone. तो एक बार लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन कर लो तो आपको चार्ट दिख जाएगा। ओके सो नाउ द थिंग इज क्या अभी क्या कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन गो अबाउट इट। सो इंपॉर्टेंट यहां पे जो लेवल्स है वो तो क्लियर हो गए राइट। सो लेट्स ये एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न। अभी देखिए क्यों हमेशा ऐसा लगता है अपने को कि बस ये वाला लेवल अगर पकड़ लेता है तो बच जाएंगे हम लोग। एंड दिस इज definitely going to be a very very crucial week as far as the levels are concerned, very crucial week. Are you agreeing to this? Important Yes. crucial levels over here if I plus draw this particular trend line over here. लेकिन इवन दिस यहां से एटलीस्ट 300 से 400 पॉइंट का तो गैप डाउन दिख ही रहा है
कि यहां तक आराम से 1700 तक पहुंच जाएगा और 16,800 इज ऑल्सो वेरी मच इन प्लेस। अभी ट्राइंगल टूटता है, फिर से ऊपर आने की कोशिश करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन इन केस राइट नाउ हायर लो बन गया है, हायर लो बना है। ओके, नाउ यू आर इन बिटवीन। तो दैट मीन्स अभी जब तक ये 17,600 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ये नीचे का प्रेशर है ही है। एवरी टाइम इट इज ट्राइंग टू गो अप बट इट इज बीइंग सोल्ड। आर यू एग्रीइंग टू दिस? करेक्ट, राइट? सो सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो अभी प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रेंड अभी साइड में चल रहा है, ऊपर नीचे, दैट मीन साइड में ट्रेंड। जो यहां पे हमको जो ट्रेंड मिला था ये साइडवे था, तो पता नहीं था कि भाई क्या होने वाला है। और फिर ट्रेंड कंफर्मेशन कभी मिला? जब भी ये ब्रेकआउट हुआ तभी ट्रेंड कंफर्मेशन मिला, राइट? सो ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए हमको ब्रेकआउट चाहिए। सो स्टेज 1 स्टेज 2 वाला कार्यक्रम चाहिए, तभी जाके वो ट्रेंड कंफर्मेशन मिल रहा है आपको। और यहां पे ट्रेंड कंफर्मेशन ऊपर जाने के टाइम पे ऊपर चले जाता है, लेकिन सीधा सीधा गैप डाउन मार देता, विच इज अगेन क्रिएटिंग अ इश्यू एज फार एज द ट्रेंड इज कंसर्न। अच्छा, जो गैप्स है वो कितना फास्ट गिरने का हिसाब किताब हो जाता है? ओके, सीधा सीधा गैप डाउन खुलता है। नाउ लुक एट इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, और आप दूसरी तरीके से सोचिए। मैं इसको एनलार्ज करता हूं, कंट्रोल क्यू। नाउ द टेक्निकल्स कैसे हेल्प करता है ये आपको समझाने का, और कॉल को क्यों बेचना है या तो पुट को क्यों बेचना है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है? एंड व्हाई, एक सिंपल रूल, एंड मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में आप सिंपल रूल्स को फॉलो करते हो और यही हम लोग ने सीखा है और कुछ नहीं सीखा है, तो आप ध्यान रखो। यहां पे आपको क्या दिखता है? इज दिस नॉट अ बुलिश एंगल्फिंग? हेलो, अनम्यूट करके डिस्कस करिए। जो भी डिफिकल्टी है वो आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, तभी जाके आपको वो एडवांटेज मिलने वाला है। बताइए। यस सर। राइट? तो यहां पे क्या हुआ? बुलिश एनगल्फिंग आफ्टर अ ड्रॉप, बुलिश एनगल्फिंग। अभी हमको खरीदना कहां पे है? इसके ऊपर खरीदना है, राइट और नॉट? ये सपोर्ट पे फिर से आया एंड देन अगेन ट्राइंग टू गो अप, वापस बेसिंग किया, एंड नाउ दिस इज द प्लेस वेयर अ प्रॉपर अप मूव हैज स्टार्टेड। नाउ इफ यू मिस दिस गेम ऑल्सो, इट इज परफेक्टली ऑल राइट, क्योंकि ये अप मूव आपको मिल गया। ठीक है? अभी देखिए 3-4 दिन इट वॉज डांसिंग, और ये वाला कैंडल क्या था? बेरिश पियर्सिंग, बेरिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग बोलो, पियर्सिंग बोलो, कुछ भी बोलो, राइट? ये गया, राइट? नाउ इफ यू आर ऑन अ डेली चार्ट, यहां पे आपको एग्जिट करना ही है। हाँ, उसके बाद में सीधा सीधा गैप डाउन, सीधा सीधा गैप डाउन, सीधा सीधा गैप डाउन, सीधा सीधा गैप डाउन। जस्ट थिंक अबाउट इट, और मैं आप उसको कैलकुलेट करिए। ऊपर जाने के लिए कितना दिन लगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिन, 16 डेज टू गो अप, 16 डेज टू गो अप। ऊपर जाने के लिए 16 दिन। हाँ, नीचे आने के लिए 1 2 3 4 5, 5 days to come down,
जस्ट 5 days. ओके, अभी आप देखिए ऊपर जाने के लिए सपोज यहां से गिर गया 1 2 3 4 5, सो यहां पे 5 दिन लगा है. हाँ, नीचे आने के लिए 1 2 3 4, ऊपर जाने के लिए 1 2 3, बराबर है. अभी देखिए यहां पे 16 दिन ऊपर था, यहां पे 5 दिन ऊपर था, यहां पे सिर्फ 3 दिन ऊपर है. ओके, अभी कल सुबह को वापस गैप डाउन खुलेगा. ओके, और गैप डाउन खुलने के बाद में सीधा गैप डाउन ही यहां पे खुल रहा है. तो सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बॉस क्या कर रहा है. एंड देन व्हेन वी गो टू द कॉल एंड द पुट, अच्छा मेरे को बताइए व्हेन टू डू व्हाट, आप मेरे को बताना एंड देन वी विल आर्ग्यू एंड डिस्कस अबाउट थिंग. अभी यहां पे ये सिचुएशन में क्या कर सकते हैं तविश, तरुण जी? Sir, I can't see the screen still. स्क्रीन नहीं देख सकते हो? नहीं. तरुण जी को दिख रहा है, दैट मीन्स आपके इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है. आप री लॉग इन किया है आपने? Sir, 3 बार किया. एक मिनट, तो फिर मैं उसको ये करके देख लेता हूं, एक सेकंड. सिर्फ रिफ्रेश या कुछ कर सकते हो एक बार. श्योर, डेफिनेटली. Screen is clear this side, sir. मैं रिफ्रेश कर लेता हूं फिर से एक बार. हुआ? नहीं? नहीं. सर मैं लैपटॉप से दूसरे किसी से कनेक्ट करता हूँ. एक सेकंड है, एक सेकंड. मैं स्टॉप शेयरिंग करके रीशेयर करके देख लेता हूं एक बार के लिए. अभी हाँ सर. मिल गया? हाँ सर. ओके ग्रेट. चल Clear है? गुड. चलो आपने बताया तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है. सी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, जब तक आप बोलेंगे तब तक पानी भी कोई नहीं देता है, ये समझ के चल. तो इट इज बेटर टू आस्क. नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग क्वेश्चंस, नथिंग रॉन्ग इन लर्निंग समथिंग, बिकॉज कभी कभी क्या होता है हमारा प्रीसेट माइंड हो जाता है. ओके, और वो चीज हमारे लिए गड़बड़ कर देते. ओके, सो लाइक अभी जो डिस्कस कर रहे थे 16 दिन ऊपर जाने के लिए लगा और 5 दिन नीचे आने के लिए. ओके, और 5 दिन ऊपर जाने के लिए और 3 दिन नीचे आने के लिए, 6 दिन, 4 दिन इनफैक्ट. हाँ, 3 दिन ऊपर जाने के लिए फिर से ये अगर गैप डाउन यहां पे खुल रहा है तो ये वाला लेवल, आप एटलीस्ट ये वाला लेवल बहुत क्रूशियल लेवल हो जाता है. और ये ट्राइंगल कौन सा बनता है? ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? Descending. करेक्ट. यस. तो नाउ लुक एट दिस. अगर ये जो लेवल यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इज दिस नॉट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल्स ओवर हियर? जो प्रीवियस लो वाला कार्यक्रम. तो असेंडिंग ट्राइंगल का जो मूवमेंट है, अच्छा आप मेरे को सी हाउ डू वी एनालाइज. इसके नीचे क्या है? जो लो मारा है वो आराम से 16,400 जो पहले का लो है, राइट और नॉट? तो ये लेवल को अगर ये तोड़ रहा है तो धीरे धीरे करके भी ये पॉसिबल है ना कि यहां तक पहुंचेगा. अच्छा, फर्स्ट टाइम पुल बैक जो मैंने आपका बोला, फर्स्ट टाइम पुल बैक, वी अवॉइड बाइंग ओवर हियर. ओके, सीधा बेरिश एंगल्फिंग या तो बेरिश पियर्सिंग. अभी देखिए हायर टाइम फ्रेम कैसे काम करता है हमारे लिए और क्यों हम लोग को हायर टाइम फ्रेम अगेन एंड अगेन वी नीड टू चेक दिस आउट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. स्क्रीन रिफ्रेश हो रहा है.
see the screen or it has gone stuck? Can see, right? Okay, great. चलो, तो एटलीस्ट ये लेवल्स क्लियर हो गए. एनी क्वेश्चंस? अभी क्या करना है करके? तो कैन वी नाउ लुक एट टू थिंग्स. अगर ये कंडीशन है तो यहां पे मैं कॉल बेच सकता हूं कि नहीं बेच सकता हूं. नाउ वी कम टू द स्ट्रेटेजी कि हमको क्या कर सकते हैं. राइट? अभी कितने दिन रह जाएंगे? 4 दिन. तो अगर 4 दिन रहने वाले हैं तो मैं ये वाले कॉल को बेच सकता हूं क्या? यहां वाले जितने भी कॉल है उसको बेच सकता हूं क्या? हाँ कि ना? सर लेकिन प्रीमियम नहीं रहेंगे उतने. वो हम लोग देख लेंगे उसका. लेकिन प्रीमियम नहीं भी रहेंगे तो वो फ्री का पैसा है कि नहीं है? सी प्लीज अंडरस्टैंड तविश, जो बेचने वाले हैं ना उसको शॉर्ट पैसा चाहिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है. ओके, उसको शॉर्ट पैसा चाहिए. चलो, नीचे खुलने के बाद में ये फिर से ऊपर चला आया तो भी कॉल का प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा? अच्छा, वो इतना फास्ट ऊपर तक जा सकता है क्या? पहली बात, ये एटलीस्ट यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा उसके बाद में ही ऊपर जाएगा ना, मे बी. तो दैट मीन्स ये वाले कॉल है, यहां पे ऊपर वाले जो कॉल है इसका वैल्यू डाउन होगा कि अप जाएगा? अभी 4 ही दिन बाकी रह गया. शॉर्ट कवरिंग आएगा, जो भी आएगा एक्स वाई जेड. हाउ यू आर गोइंग टू लुक एट थिंग्स? यू टेल मी. और कभी कॉल को सेल करना है या तो कभी कॉल को बाय करना है, आप मेरे को बताइए. और सी, आपने जो भी सीखा है उसको आप डिस्कस करिए. तो आपने अगर आपके थिंकिंग लेवल में कुछ तो गड़बड़ है तो आई कैन हेल्प यू आउट. बोलिए. अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या कर सकता था कि मैं कॉल और पुट के डेटा को मैं चेक कर लेता था, पहली बात तो. ओके, एंड लेट्स मूव टू द कॉल एंड पुट का डेटा. ठीक है, उसके पहले हम लोग वो डेटा को कंफर्म कर लेते हैं. लेट्स एनालाइज द बैंक निफ्टी ऑल्सो. सो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं. सो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, लेकिन इफ वी कैन चेक दिस आउट, कंट्रोल क्यू. अभी आई एम लुकिंग एट वेरी स्मॉलर, 4-5 महीने का ही डेटा को आपको मैं दिखाता हूं. ओके, नाउ लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. थोड़ा सोचना शुरू करो. ओके, लेट्स लुक एट इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. कि यहां पे ओके, गेम वॉज हाई, नीचे आया, नीचे गया. सो नया लोअर लो यहां पे कहां पे बना? 38,600, 38,900. फिर ये वापस नया लो बना, 37,700 को तोड़ा. बराबर है. इसके बाद में नया लो कहां पे बना? यहां पे 35 के उधर. ओके, ट्राइंग टू गो अप. ओके, और ये जो लेवल था जहां से वो 37,000 से नीचे गया था, वो लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद में फिर से नीचे गया टू मेक द लो अराउंड 34,000 के आजू बाजू का. ओके, उसके बाद में ये साइडवे चला फॉर कितना दिन? ऑलमोस्ट 5, 7, 8, 10 दिन. एंड देन यू हैड गॉट दिस 1, 2, 3. और यहां पे मेरे ख्याल से some result came in to go up. अभी देखिए कहां से वो गिरा है? ये वाले लेवल से. ओके, अगेन ट्राइंग टू कम अप. ये जो था, ये जो पॉइंट था,
फिर से ये 2 ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। अभी मेरे को बताइए ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है, आप अभी ये पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पे सोच रहे हैं? चलो अप टू साइडवेज, अप ट्रेंड टू साइडवेज, राइट और नॉट? अभी अगर मैं ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रख देता हूं यहां से, ओके, इसका लो और इसका ये, okay, so now if I am drawing this as a trend line, so this is the actual low, this is the actual low, and then going down over here this is the low. so अभी अगर गैप डाउन खुलता है, ओके, तो ये राउंड फिगर 38 वाला पकड़ के बैठ जाएगा। अगेन टू लुक एट इट, अगर ये ऊपर के साइड पे, लेकिन ऊपर का कंफर्मेशन कभी मिलेगा? ऊपर का कंफर्मेशन कभी मिलेगा? जब भी ये ट्रेंड को तोड़ेगा, यस और नो? हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं अभी अगर इसको तोड़ना है तो इसके ऊपर बंद आएगा तभी जाके ट्रेंड टूटेगा। सो इफ आई एम लुकिंग एट इट इन दिस पर्टिकुलर फैशन, ये चैनल में फंस गया है कि नहीं फंस गया है? ऊपर नीचे, ओके, और ये इन बिटवीन है। तो अभी आप मेरे को बताइए वेयर इज द ट्रेंड? इन बिटवीन है ना, इन बिटवीन है, राइट और नो? हेलो, यस पक्का इन बिटवीन है? यस सर, यस सर। तो कैन आई सेल द कॉल, हाँ कि ना? वी हैव टू डिसाइड सम पोजीशन, तो कुछ तो समझना पड़ेगा ना। इसमें काम कैसे करने का जब तक वो ही नहीं समझेंगे तब तक हम लोग क्या करने वाले हैं, मेरे को बताइए। इफ यू आर कंफ्यूज्ड तो एक्शन कैसे लेने वाले हो? कल क्या होने वाला है मालूम है क्या? नहीं मालूम है मेरे को, मालूम है नहीं मालूम है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक एट इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट कि हम लोग जो सीखे हैं उसको खाली अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी सपोज यहां पे डायरेक्शन क्लियर नहीं है, निफ्टी में डायरेक्शन क्लियर है, यस सर। राइट? तो नाउ अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है, दैट मीन्स आइदर इट इज साइडवेज, तो कैन आई सेल अ कॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज, हां कि ना? 39,800 का कॉल बेच सकता हूं कि नहीं बेच सकता हूं? प्रीमियम कुछ भी होगा, 39 का कॉल बेच सकता हूं कि नहीं बेच सकता हूं, वो अभी देखेंगे हम लोग। चलो 38,500 का कॉल और पुट का वैल्यू तो कम से कम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? और फिर 3800 का कॉल एंड पुट देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? सो नाउ लेट अस लुक एट इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट कि यहां पे कॉल एंड पुट का डेटा कितना बता रहा है। सो कॉल का डेटा 38,500 का दिखा रहा है 358, ओके, अभी मैं इसमें 358 डाल देता हूं। तो मेरे को बताइए ये कहां से आ रहा है और क्या कर रहा है? आपको कंफर्मेशन कहां पे मिला? 38,500 का कॉल का कंफर्मेशन कभी कहां पे मिल रहा है? हेलो, एनगल्फिंग एनगल्फिंग पे मिला, यस और नो? चलो आपने एनगल्फिंग पे भी नहीं काम किया है, नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट डे कंफर्मेशन कहां पे मिला? नेक्स्ट डे कंफर्मेशन कहां पे मिला? लो टूटने में। अगर आप खाली ये वाला रूल को भी फॉलो करते हो तो भी घर पे पैसा आएगा आएगा आएगा। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है, डायरेक्शन मालूम नहीं है, हाथ मत लगाओ। मैं आपको क्या बता रहा हूं, हमेशा क्या बोलता हूं कि भाई लाइन बना के रखो,
लाइंस बना के रखो। अगर ये कंफर्मेशन मिला, बाय बेरिश एनगल्फिंग हो गया, 38,500 का कॉल बेचते हैं, ओके, तो नेक्स्ट डे इसके नीचे बेचना है, 883 के नीचे, ठीक है, गोइंग डाउन टू 2 दिन में 500 पॉइंट। दैट मीन्स ये वाला जो भी कॉल है 883 के ऊपर जाएगा नहीं, दैट मीन्स ये कॉल नहीं जा रहा है ऊपर। यस और नो, आर यू एग्रीइंग टू दिस? चलो फिर से मैं दिखा रहा हूं एज फार एज पुट इज कंसर्न, ठीक है, आई एम लुकिंग एट पुट नाउ, सेम स्ट्राइक प्राइस, दूसरा कुछ नहीं देख रहा हूं, ठीक है, एंड आप फिर आपका स्ट्राइक प्राइस दिखाना। अगर लाइंस बना के रखते हैं, अगर लाइंस बनाते रखते हैं, कहां पे आपको सेलिंग मिला? यहां पे सेलिंग मिला 38,500 का पुट, राइट? $400 से 500 पॉइंट। अगर लाइंस बना के रखा, लाइंस बना के रखा, $400 से 500 पॉइंट, तो ये वाला जो पुट है, हाँ, ये गैप ओपन खुलने वाला ही है ना, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, नीचे बंद आया था, राइट, और खुला किधर, गैप ओपन खुला है। फिर भी मैं बता रहा हूं, अभी भी ये 17 का दिखा रहा है, चलो ये अभी का करंट सीरीज का दिखा रहा है, लेकिन मैं एक सीरीज पीछे चले जाता हूं, ओके, आपको और एक कंफर्मेशन दे रहा हूं, दूसरा किसी का भी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं, 38,000 का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, 38,000 का स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं, चलो 38,000 के स्ट्राइक प्राइस, 38,000 का स्ट्राइक प्राइस, बताइए मेरे को, कुछ मत करिए, खाली हायर टाइम फ्रेम डेली चार्ट में चुपचाप लाइन बना के रखो, लाइंस बना के रखो, कॉल ऑफ 38,000, स्ट्राइक प्राइस 500 और 500 पॉइंट का गैप के साथ में आपको मैं बता रहा हूं, व्हाट इज दिस टू कैंडल्स टेलिंग यू? व्हाट इज दिस? वेरी शरामी, करेक्ट। हमको बेचना कहां पे है? लो के नीचे। मिल गया आपका 500 पॉइंट, सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाया सर? कहाँ? ये देखिए आपको मैं बताता हूं, क्या कहाँ का लिए? हाँ ये देखिए, ये वाला जो ये दो दिन ही गया था, बराबर है, यहां पे कोई कंफर्मेशन नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, करेक्ट है, फिर प्राइस ऊपर गया, अच्छा ये कोई हम लोग के लिए ये 3-4 दिन हम लोग खाली ऑब्जर्व करते हैं, राइट और नॉट, बराबर है, पांचवा और छठा दिन, 6 दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी ये पैटर्न हमको कंफर्मेशन दे रहा है, दैट मीन्स अगर मैं ये लेवल, दोनों लेवल के नीचे अगर मैं बेचता हूं तो एटलीस्ट मेरा ये यहां तक का तो टारगेट फिक्स हो गया। ये लो लाइन क्या है? नीचे वाला लाइन क्या है? ये वाला, जहां से ये वाला लाइन, इसके नीचे ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो नहीं ले सकते? ये इसके लो को भी देख सकते हैं, इसके लो को भी देख सकते हैं, इसके लो को भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल रूल क्या बता रहा हूं, चलो पहला टारगेट जो है वो एटलीस्ट ये वाला टारगेट तो उठा सकता हूं ना, जी फिर तो दिल मांगे मोर होता है, ओके ओके, ये एक्स्ट्रा है वो तो दिल मांगे मोर, लेकिन 1300 को बेच के हम लोग 500 पॉइंट अपने को मिल जाता है, तो बाय बाय टाटा हो जाता है कि नहीं होता है? सो एटलीस्ट अंडरस्टैंड वेयर टू सेल,
ये तो कंफर्मेशन मिल रहा है आपको? सर ऊपर वाला जो लाइन है हाँ जी, उसकी अगर ऊपर गया तो ब्रेकआउट हुआ तो मैं ग्रीन कैंडल के ऊपर बाई कर सकते हो ना यहाँ पे, कर सकते हैं ना, डेफिनेटली बाई कर सकते हो। फिर भी बट यहां से यहां पे देखिए, बाइंग में क्या होता है, एक चीज समझना है, आप बाइंग कहां पे कर रहे हो, 1300 पे बाइंग कर रहे हो, तो बहुत महंगा बाइंग हो रहा है ना टेक्निकली स्पीकिंग। अंडरस्टूड 1300 मल्टीप्लाई बाय 25 करो तो बाइंग बहुत बड़ा हो जाता है ना सर। समझ गया सर। तो महंगा बाई करके क्या फायदा होने वाला है? जी 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 ओके, सी आपको मेरे को आपको दो चीज आपको आज कंफर्म किधर लिख के रखो प्लीज, और ये बार बार ऑब्जर्व करो। बाइंग कहां पे होता है मैक्सिमम टाइम? 300 के आजू बाजू, 400 के आजू बाजू। 400 वाला इन लोग लेके जा रहे हैं 1200, 1300, और महंगा वाला 1500 वाला नीचे 400 तक लेके आ रहा है। ये एक या तो 2 हफ्ते का ऊपर नीचे वाला करेगा। तो मैं तो आपको क्या बोलता हूं, पूरा महीने में 1000 पॉइंट घर पे लेके जाना है, राइट और नॉट? और कुछ नहीं करना है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5000, 5 लाख रुपया भी है और 1000 पॉइंट मिल गया तो भी कितना होता है, 25,000 रुपीज। 25 एक लॉट। एक लॉट के ऊपर 12 महीने में कितना हो जाएगा? जी सर। और फिर भी आप पूरा का पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं करते हो, क्योंकि एक लॉट में सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 रुपीज लगते हैं। लेकिन हायर टाइम फ्रेम है, यहां पे हमको ऐसे जाके बैठना है, ऐसे कुछ नहीं करना है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, टेक्निकल हायर टाइम फ्रेम। ये देखो, मैंने स्ट्राइक प्राइस सीधा 500 का स्ट्राइक प्राइस, दूर का स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाया है। अभी आप बोलोगे चलो सर ये तो आपने दिखाया ये सर, तो दूसरा वाला भी देख लीजिए ना, पुट वाला भी देख लीजिए ना। जनरली कभी भी आपको, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अभी और इसके पहले भी आपको रिपीट, जनरली 200-300 के आजू बाजू बाइंग आता है, 200-300 के आजू बाजू बाइंग करते हैं, बाइंग वाले हैं वो 200-300 रुपया, क्योंकि छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं उन लोग ज्यादा पैसा नहीं डालने वाला है। 300 रुपया, 300 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है? तभी इसके पास कैलकुलेटर होगा ही होगा, कितना होता है? 7,500। 7,500। तो जिसके पास 10-15 हजार 20,000 रुपये वाला है, वो 200-500 के आजू वाला ही स्ट्राइक प्राइस उठा सकने वाला है, ऊपर में तो डेफिनेटली नहीं बाई करने वाला है। और यहां पे ही हाईएस्ट वॉलिटिलिटी रहती है, लेकिन यहां पे हम लोग को चांस नहीं मिलता है, कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। चलो, आपने ये दो लाइन भी बना के रखा है, तो आपका एंट्री कहां पे आता है? ऑलमोस्ट 400 के ऊपर, और 400 से लेके 400 पॉइंट फिर भी मिल रहा है, लेकिन आप यहां पे एग्जिट नहीं करने वाले फॉर श्योर, दिल मांगे मोर होगा तो। ये यहां पे आप एग्जिट नहीं करते हो 300-400 पॉइंट के ऊपर। अगर ये घर पे लेके गया तो ये तो गैप डाउन खुला, और फिर ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे आ गया। अभी देखिए, कल गैप 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 खुलेगा तो ये यहां से यहां तक चला जाएगा, वापस 300-400 पॉइंट वाला, 200 से 400 पॉइंट, 500 पॉइंट वाला गेम। लेकिन बिकता कहां पे है? 2 महीने 2 हफ्ते पहले बिकता कहां पे है? ऑलमोस्ट 1300 पे। 1300 वाला 200 लेके आया, 1000 पॉइंट का गेम। ये बेचने वाला सिस्टम को समझिए, लेकिन उसके लिए मिनिमम आपको हफ्ता 2 हफ्ता रुकना पड़ेगा। यस और नो? अच्छा, नाउ इफ यू आर लुकिंग एट दिस टू, ये दोनों कैंडल क्या है?
हरामी। तो हरामी के बाद में यहां पे मैं बेच सकता हूं कि नहीं बेच सकता हूं? फिर भी 400-500 पॉइंट मस्ती मस्ती में मिल जाते हैं। तो दैट मीन्स एक हफ्ते के लिए मैं कुछ नहीं करता हूं, खाली उसको ऑब्जर्व करता हूं। कोई भी स्ट्राइक प्राइस को खाली ऑब्जर्व करता हूं एक हफ्ते के लिए, और जब भी मेरे को बड़े टाइम फ्रेम में कुछ मिलता है, वहां पे भी मिला, यहां पे भी मिला, क्यों नहीं कर सकते हम लोग? यही मैंने सिखाया है ना, मैं कुछ बड़ा कुछ नया नहीं सिखाया है ना। तो बेचना कहां पे है? बाइंग तो डेफिनेटली मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंग आपको देखेंगे कि 300-400 के आजू बाजू बाइंग होने वाला है, लेकिन ऊपर में जो बिकता है वो हमेशा 1200-1500 के आजू बाजू बिकता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप यहां पे बेचो, नो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। कंफर्मेशन ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? फिर भी 400-500 पॉइंट है बड़े टाइम फ्रेम में। आर यू गेटिंग मी? Somebody has joined. Wow, super. Angelo, good morning. Angelo is out of India, but he is still in love with what we are doing. And this is what I love about this particular market. आपको खाली स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। Now you are not in front of the machine. Tavish, you are on your work. You are not in front of the machine. Okay? Don't worry. आप मेरे को बताइए, अभी नेक्स्ट दो हफ्ते पहले का, अभी 17 तारीख है, बराबर है? अभी मैं 17 तारीख का है, तो एक्सपायरी कभी का है? एक्सपायरी कभी का है? व्हाट इज एन एक्सपायरी? नेक्स्ट एक्सपायरी कभी का है? 17, उसके बाद 24। उसके बाद में 24, राइट? अगर मैं 24 का 24 के बाद में क्या है? 3 मार्च है, करेक्ट? हाँ, 3 मार्च है। हाँ, तो मैं 24 और 3 मार्च का डेटा दिखाता हूं आपको। देखिए, पहले 24 का देख लेते हैं, ठीक है? 38, खाली 38 का देखते हैं, ओके? जस्ट टू शो यू कि यहां पे क्या इन लोग करते हैं एंड हाउ यू आर गोइंग टू सी। द पॉइंट इज, हमको थोड़ा मेहनत करना है, लेकिन एक सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। सो आई एम लुकिंग एट 38, चल, ओके, आई एम लुकिंग एट 38, कॉल एंड पुट ऑफ 38, ऐड करता हूं कॉल एंड पुट ऑफ 38 ऑफ 24th ऑफ मार्च, ठीक है? एंड 3rd मार्च का कॉल एंड पुट को देख लेता हूं। कन्विक्शन, अगर आपके पास खाली ये सिस्टम को है ना, थोड़ा स्टडी करो एंड बिलीव में, अभी मैं अगर मैं इंट्राडे नहीं करता हूं ना, तो ये मेरे को पूरा पैसा देता है। ओके, नाउ 3rd मार्च एंड 24th ऑफ फेब का हायर टाइम फ्रेम्स, चल, व्हाट इज दिस? What is this? Bearish engulfing, okay, and you can get a sell. आपने 400-500 रुपया बनाया, ओके? अगर 1 2 3 रिवर्सल है 800 में, दैट मीन्स ये 400 से 500 पॉइंट अप टिल ओवर हियर, कैन वी नॉट गेट दिस? कुछ मत करो, ओके? 24th ऑफ मार्च, अरे 24th ऑफ फेब्रुवरी, ओके? दिस इज कॉल का डेटा, सेव करके रखता हूं आपके लिए, और इसको हम लोग फिर से फॉलो अप कर सकते हैं उसको,
लेकिन आप जस्ट लुक एट दिस, इज दिस नॉट अ बेरिश एंगल्फिंग डियर? हाँ देखो ना, हम लोग सेलर है, बायर नहीं है। अगर खाली यहां पे आज मैं सेलिंग का कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं, हम लोग सेलर है, यहां पे सेलिंग नहीं दिख रहा है। यस, यहां पे दिखाई दिया। ओके, लेकिन हम लोग जब तक डेटा बराबर नहीं है तब तक हाथ नहीं लगाने का। यहां पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सेलिंग दिखाई दिया लेकिन यहां पे सेल नहीं आया। हम लोग हायर टाइम फ्रेम देख रहे हैं। ये कंफर्मेशन मिला, ये कंफर्मेशन मिला। अगर ये कैंडल को भी एग्जीक्यूट किया ना तो भी 400-500 पॉइंट है डियर। हमेशा मैं आपको बोलता हूं 1300, 1400, 1500 सेलिंग इज ओनली हायर टाइम फ्रेम्स। और ये पैसा, बड़ा पैसा उन लोग लेके जा रहे हैं। हम लोग 100 पॉइंट का गेम खेलते हैं इंट्राडे में, लेकिन बड़ा पैसा उन लोग लेके जा रहे हैं। नाउ दिस इज 24th of Feb, ठीक है। लेट्स, I am just saving this for your our reference also, and same data of 3rd of March। अगर ये गैप डाउन कल खुलने वाला है मंडे को, तो ये सीधा सीधा नीचे ही खुलेगा ना। तो हमको बेचना कहां पे है? तो वेयर डू यू वांट टू सेल? 1100। यस और नो? लेकिन पब्लिक ने बेचा कहां पे है वो देखो सर, वो देखो 1400, 1500, 1300। यहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं भी होगा, लेकिन बेचा कहां पे है? 1400, 1500। ऑलरेडी 500 पॉइंट्स आर डाउन, दे हैव ऑलरेडी मेड दैट 500 पॉइंट्स, एंड दैट इज वेयर द बिग मनी गेम इज ऑल अबाउट। मैं आपको यहां पे नहीं बोलता हूं लेट द डेटा कम इन, लेट द डेटा कम इन ऑल्सो, ठीक है। अभी यहां पे अगर लाल कैंडल मिल गई, फिर भी आपने बेचा, फिर भी 400-500 पॉइंट नीचे के साइड पे हो सकता है कि नहीं हो सकता? सो प्लीज, अभी चलो, ये तो कॉल का डेटा हुआ, ठीक है, मैं सेव करके रखता हूं आपके रेफरेंस के लिए। ओके, लेट्स चेक द पुट का डेटा। पुट, पुट का बाइंग कभी होता है, कभी भी ध्यान रखना, कहां पे बाइंग हो रहा है, कहां पे बाइंग हो रहा है? Put your बॉटम lines in place, simple, lines in place। कहां पे बाइंग हुआ? 200-300 के आजू बाजू, क्योंकि उससे ज्यादा रिटेलर प्लेयर पैसा नहीं देने वाले हैं। मेरे पास 20,000 है ना, फिर भी मैं 2 लॉट उठा के लेके जा सकता हूं। ओके, और मैं परसेंटेज रिटर्न का बारे में सोचता हूं। इवन इफ आई मेक 50 पॉइंट्स ऑन दैट, ओ माय गॉड, आई एम स्टिल मेकिंग लॉट ऑफ मनी, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। अभी ये गैप गैप अप ही खुलेगा ना, चलो यहां से ये ग्रीन कैंडल ही बनेगा ना, यहां पे ऐसे। ये 24th of February का है। अच्छा मेरे को बताइए, एक भी बार ऊपर आया क्या बेरिश एंगल्फिंग के बाद में? अगर कंफर्मेशन मिल गया,
उसके नीचे भी हम लोग बेचते हैं तो भी 300 से 400 पॉइंट मिल गया, बाय बाय टाटा। इट्स अ ड्रॉप, इट्स अ बेस एंड अ ड्रॉप कमिंग इन। तो वेयर यू वांट टू सेल, somewhere in the vicinity of these levels to make your 500-600 points। ये पुट का डेटा बता रहा हूं, कॉल का भी डेटा सिमिलर था, पुट का भी डेटा सिमिलर ही है। ओके चलो, क्लियर, सेव करके रखता हूं। फिर से अभी ये तो कौन सा है, 24 फरवरी का। ओके अभी उसके आगे वाला डेटा देखेंगे, 3 मार्च का। 3 मार्च में क्या बता रहा है वो, उसको ऊपर ही जाना है। दैट मीन्स कल अगर गैप डाउन खुलेगा, बाइंग किधर आया, सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड राइट डाउन समवेयर, बाइंग कहां पे आता है, बाइंग कहां पे आता है, ऑलवेज इन द रेंज ऑफ वेयर, 200-300 के आजू बाजू। मैंने यहां पे बहुत पैसा तोड़ा है और ये समझ गया हूं मैं कि बाइंग 200-300 के आजू बाजू ही आता है, 10,000 के नीचे का ही बाइंग आपको करना है, और होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लो, कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लो, ठीक है। अभी देखिए, इसका टारगेट भी कल का फिक्स है कि नहीं है, 695। कल ये खुलेगा ऊपर के साइड पे, यहां पे डांस करके, अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, ये इसका टारगेट भी तो आपको मिल रहा है 100-200 पॉइंट्स का। लेकिन अगर बाइंग करना है तो 10,000 रुपए के अंदर अंदर। लेकिन यहां पे डीके होता है कि नहीं होता है, इसके लिए हम लोग बाइंग नहीं करने का हिसाब करते हैं, बिकॉज ऑफ द डीके। 2 हफ्ता बाकी है, तो सेलिंग में मजा आता है कि बाइंग में मजा आता है, आप मेरे को बताइए। कॉल बिकेगा, अगर प्राइस नीचे जाएगा तो कॉल बिकने वाला है, तो इसमें थीटा डीके भी तो होने वाला है, तो ये और नीचे जाएगा ना, ऊपर नहीं जाएगा। तो व्हाई यू वांट टू सेल, यू आर सेलिंग बिकॉज थीटा डीके होता है, एंड यू आर सेलिंग राइट एट द टॉप, एंड यू आर एबल टू मेक दैट मनी। अभी परसेंटेज समझ लो, परसेंटेज समझ लो। when you are selling something which is at a different high, okay, say 1200 to 1400 के वहां पे सेलिंग हो रहा है, चलो मे बी अराउंड 800 also, what you want to pick up, 400 points to 500 points, is this not right? Am I telling you to pick up everything and go away? No, that means यहां पे my pickup is only and only, okay, 30 to 40%, 40% only, which is still a good money because 3 से 4 दिन में काम हो जाता है। And what is your investment in this particular thing? Hardly 1,70,000 max to max. ₹1,70,000 में if you are picking up 500 points multiply by 25 equals to कितना होता है? 12,500। 12,500 में
बराबर है? कुछ नहीं करना है, खाली चुपचाप बैठना है। 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर ये 12,500 आपके घर पे आ रहा है। हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम। मैं इंट्राडे आपको वो सेल करके भूल जाना है। एक दिन के बाद में आएंगे, आपका काम हो गया, बाय बाय टाटा, यू आर आउट ऑफ द गेम। तो आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने होंगे? आपकी मैक्सिमम में मैक्सिमम आप 8 ट्रेड करोगे, इससे ज्यादा नहीं करने वाले हो कि 10 ट्रेड होगा आपका। तो 10 ट्रेड में अगर 12,500 भी मिला तो भी कितना मिलने वाला है आपको? एक 3 महीना आप खाली ट्राई करके देखो, मेरे को 10 ट्रेड से ऊपर नहीं मिलेगा सर। मैं तो बोलता हूं खाली 8 ट्रेड मिलेगा, फिर भी पैसा देखो कितना बड़ा। खर्चा कम, 20 रुपीज पर ट्रेड, मार्जिन पूरा। और अगर आप सिर्फ 2 लॉट पे भी काम करते हो, एक कॉल के साइड पे, एक पुट के साइड पे, तो आपका पैसा कितना डबल हो सकता है कि नहीं हो सकता? कैन यू, आर यू एग्रीइंग टू दिस? लेकिन क्या करते हैं हम लोग मालूम है? हम लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इक्विटी करते हैं, हम लोग ऑप्शन करते हैं, हम लोग सब जगह पे भागते हैं, इधर उधर भागने का हिसाब करते हैं। हम लोग को इन्वेस्टर भी बनना है, हमको ट्रेडर भी बनना है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आई हैव लिव्ड दिस जर्नी, I have lived this journey of becoming an investor, of becoming a trader. Now the choice is yours. What you want to become and where you want to create your wealth. मैं wealth की बात कर रहा हूं. Where you want to create your wealth. The system is simple, simple, simple. You just need to wait. ऐसे wait for the trades to come to you. हम लोग वो patience भूल गए. That is why I keep on telling everyone, सिंपल सादा मेडिटेशन करो, कुछ नहीं जाता है। जस्ट अपने आप को रिलैक्स वाला मोड में रखो, अपने आप ट्रेड मिलते हैं, अपने आप ट्रेड मिलते हैं। आपको एक मैं बड़ा एग्जांपल देता हूं, जो मैं बहुत कम स्टॉक्स को फॉलो करता हूं, राइट? यू नो, मैं बहुत कम स्टॉक को फॉलो करता हूं, एंड लेट मी शो यू। बहुत कम स्टॉक को फॉलो करता हूं, एंड सी द वे द ट्रेड इज कमिंग टू अस। जस्ट मिनट। ये क्या है? बजाज फाइनेंस 7,800 का पुट। कितने का पुट है? 7,800 का। व्हाट इज प्राइस वाज गोइंग अप। ये लास्ट टाइम जब भी मैंने आपको क्लियर बोल दिया था, और ये ब्यूटीफुल अप मूव मिला। लेकिन ये दोनों कैंडल क्या बताया मेरे को? हेलो, वेरी शराब। now my stop loss is so small, I get a chance to sell right at 900 levels, 950 levels, and I am able to make my money 300 पॉइंट फ्री का पैसा। बिकॉज यहां पे मेरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग था, इसके ऊपर चला जाएगा मैं एग्जिट मार दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमेशा आपको मैं बोलता हूं, बाइंग कहां पे होता है? जब ये आइटम बहुत सस्ता होता है ना, तभी बाइंग होता है। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हाँ? और आपको उसके अगेंस्ट में आपको चार्ट दिखाता हूं, उसके अगेंस्ट में आपको चार्ट दिखाता हूं। I trade only few, but check this out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
And this is the beauty of how the system works. Okay. Result coming in, beautiful result coming in, best result coming in after a bearish engulfing. और ये हम लोग लास्ट टू लास्ट हम लोग ने ये डिस्कस भी किया था. बजाज फाइनेंस, हाथ मत लगाना, ये ऊपर के साइड पे है, ये वेज फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, एंड देन द प्राइस कमिंग स्टार्ट्स टू कम डाउन. 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day. जनगण मन. From a drop of 8,000 to 6,700 levels. कॉल का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 130 रुपीस था, वो भाग गया ऊपर 700 रुपीस पर. टेक ओनली फ्यू ट्रेड्स, बट दे विल गिव यू दैट पावर. अच्छा, जब ये आप यहां पे ये देखते हो तो इसका कॉल को बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो? अच्छा, ये अगर घूमेगा इधर डांस भी करेगा तो कॉल क्या करने वाला है? डिके करेगा कि नहीं करेगा? सो व्हेन यू वांट टू सेल समथिंग, ओके, either it is not going to go up or it is going to go sideways and the decay is going to take place. Are you with me? Are you with me? So we are looking for decay and price not ready to go up. That is where we want to sell the call. Okay, and I'll show you selling of call, how it helps. कॉल पुट को दिखाता हूं आपको. शो, ओके, 7,800. Are you with me? Are you with me? तवेश, Yes, sir. आपको कभी बेचना है जब भी वो प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला है, तभी आपको कॉल बेचना है. और ये देखिए, भले ये कंटिन्यूअसली अभी ये 16 रुपया तक पहुंच गया बॉस, 350 वाला जीरो हो गया. तो इसको सेल करेंगे जब ये बेरिश इंगल्फिंग बना, उसके लो को तोड़ते ही ना. यस, देखो इक्विटी में भी वहां पे कंफर्मेशन मिला, उसके बाद में भी आपने बेचा तो भी 200 पॉइंट फ्री का पैसा है कि नहीं है? आप मेरे को बताइए. उसके अगेंस्ट में 7,800 का पुट का प्राइस क्या होगा? आप ही मेरे को बताइए. 7,800 का पुट का प्राइस क्या होगा? कहां से स्टार्ट किया होगा? ऊपर से. नीचे से सर. 150 रुपया वाला ऊपर 800 रुपया हो गया. और यही मजा है, यही मजा है. खाली एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को भी देखो, फॉरगेट अबाउट बैंक निफ्टी, खाली एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में भी आपको चांस मिलता है एंट्री एग्जिट का. और कॉल पुट आपको बताता है मैं क्या करने वाला हूं फॉर द नेक्स्ट 2 days 3 days. एक को बेचा, एक को खरीदा, दोनों में आपको पैसा मिल सकता है. एक ही ट्रेड लो. ऐसे समझो अभी 13 तारीख है, मैं सिर्फ एक ट्रेड लूंगा और उसमें मेरे को पैसा कमाने का. क्या कर सकते हो? कौन सा स्टॉक को हाथ लगा सकते हो? जो स्टॉक को आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो.
Okay, let's check the IT. Let's check the IT. Every day IT वाला नीचे जा रहा है, yes or no? हाँ, मैं डेली चार्ट में दिखा रहा हूं, ये देखिए, इसको मैं खाली साइड में करके, क्या कर रहा है ये 1900 वाला 1700, ओके, क्या कर रहा है ये, नीचे जा रहा है, क्या कर रहा है, 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 नीचे जा रहा है। जो आइटम नीचे जा रही है ऊपर वाले कॉल को बेचना ही है ना कि नहीं बेचना है? ये फिक्स पैसा है बॉस, आपको ये समझना है, फिक्स पैसा है, आपको ट्रेड ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द गेम। 2 या तो 3 ट्रेड पूरा महीने में आपको 50,000 रुपया देगा, एंड यू आर एंजॉइंग लाइफ। गुड मनी, गुड अंडरस्टैंडिंग, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? जो चीज नहीं समझ में आया ना पूछो। अच्छा मेरे को बताइए, अगर आपने कुछ ढूंढा और आपने ट्रेड ग्रुप में डाल दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है आपको? कौन आके कुछ बोलने वाला है कि ये गलत गया? मैं भी जब भी एक्सपायरी के टाइम पे मैं गलत गया, मैंने बिंदास डाल दिया ना, मैंने गलत गया, उसमें मैंने क्लियर था, उसमें इंट्राडे में मैंने पैसा बना लिया, तो वो क्योंकि मैंने उसमें लिखा गलत था, मेरी मिस्टेक क्या हो गई थी, मैंने उसमें लिखा गलत कि जब भी प्रॉफिट दिखता है तभी आप एग्जिट कर सकते हो, तो उसमें प्रॉफिट दिखा दिया, 125 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखाई दिया था एक टाइम पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो फिर से ऊपर आ गया एंड इट बिकेम अ लॉस मेकिंग, यस, बिकॉज थीटा डीके हो गया। सो आई वॉज रॉन्ग बिकॉज आई हैड रिटन इट रॉन्ग, एंड इट वॉज ओके टू एडमिट भाई मैं गलत हो गया, तो क्या फर्क पड़ा? लेकिन जब ही हमको बड़ा पैसा मिलता है, क्यों किसी को बताने की भी जरूरत है? आपने पोस्ट कर दिया, एंड मैंने हमेशा आपको मैं बोलता हूं सेलिंग के लिए मैं बैठो, सेलिंग के लिए बैठो, क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट भागता है, जब भी वो नीचे भागता है तभी आपको बहुत इजीली पैसा मिल सकता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम लोग सेल करने के लिए डरते हैं, एंड इन्वेस्टर के माइंडसेट से आते हो, मैं हमेशा यही बोलता हूं, इन्वेस्टर के माइंडसेट से ओनली बाइंग। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में बाइंग करना है तो कहां पे बाइंग कर सकते हो? 200 एंड 350 वाले लेवल्स पे, दैट्स इट। उसके ऊपर का बाइंग नहीं सोच सकते हो आप, मार पड़ेगी। लेकिन सेलिंग ऊपर का देख सकते हो, 1100 1200 और 400 500 पॉइंट मिल गया, बाय बाय टाटा। अभी मैं नया ट्रेड ढूंढूंगा, नई 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 एक्सपायरी में ढूंढ सकता हूं। ट्रेड खत्म हो गया उसके बाद में फाइन। और एवरी ये एक पर्टिकुलर इसका नहीं बता रहा हूं, मैं तो रैंडम आपको दिखाया, 3800 38500 वाला रैंडम दिखाया आपको, और आपने देखा कि इवन 500 पॉइंट्स का स्ट्राइक प्राइस में भी सिमिलर टाइप का अंडरस्टैंडिंग होता है। सो आई होप टुडे यू वर एबल टू अंडरस्टैंड। खाली लाइंस बना के रखो, 4-5 दिन चुपचाप देखो, जब भी उसने कंफर्मेशन दिया तभी आप चुपचाप सेल कर लो और बैठो 1 दिन 2 दिन के लिए, और पैसा मिल गया, 400-500 पॉइंट मिल गया, यू आर आउट एंड नोबडी टू स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग दैट एक्स्ट्रा मनी। एंड वंस यू अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस गेम, अब 2 लॉट में काम करो, 5 लॉट में काम करो, 10 लॉट में काम करो, 100 लॉट में काम करो,
लेकिन गेम तो समझ लो, पैसा तो बड़ा ही है, उसको घड़ी घड़ी नहीं देखना है। हायर टाइम फ्रेम्स, हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, क्यों बता रहा हूं मैं उसको हायर टाइम फ्रेम को ध्यान रख के काम करो? बिकॉज हायर टाइम फ्रेम में पिक्चर क्लियर मिल जाता है। यही तो हम लोग सीखे, बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग। खाली दो चीज के पीछे, हरामी 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 हरामी, बस दो या तो तीन पैटर्न को मास्टर कर लो। एम पैटर्न दिखता ही दिखता है, डब्ल्यू पैटर्न दिखता ही दिखता है, खत्म। आपको क्या करना है वो नक्की कर लो, एंड देन गो अहेड एंड टेक द ट्रेड एंड वेट फॉर द ट्रेड टू गिव यू द आउटपुट यू रिक्वायर। कुछ कॉन्फिडेंस रखो अपने आप को। डर लगता है, मेरे को भी डर लगता है, एवरी ट्रेड डर लग के काम करता हूं मैं, लेकिन फिर इट गिव्स यू दैट बेनिफिट। क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस बिफोर वी शट डाउन? आई होप टुडे सेशन वाज क्लियर। यही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्लियर है? वेरी क्लियर सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, सो एक एक आप अपने आप को 2 लाख रुपया दे दो और बोलो कि मैं आइदर कॉल या तो पुट ये कंडीशन में बेचूंगा, स्नैपशॉट निकाल के रखो। ट्रेड कंप्लीट होने के बाद में वापस स्नैपशॉट निकाल के रखो। कितना रुपया मिला उसका इंपॉर्टेंस मत दो। किसी में 7,000 रुपया मिला और आप खुश है, 7,000 रुपया का स्नैपशॉट निकाल के रख लो। अगर आप 10 स्नैपशॉट निकाल के रखोगे ना, 10, सिर्फ 10, एंड यू विल रियलाइज व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन यू हैव टेकन होम। 10 ही, खाली 10 बोल रहा हूं। पूरा महीने में आपको 5 ट्रेड लेने हैं। हेलो, ठीक है, डन। चलो, टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू वंस अगेन संडे को with one more understanding, one more learning. Bye bye, take care. बाय।